हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की। ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Exploitations here, the people of India were exploited not only a British but also be a money lender, the zamindar. This system was called the forced labor right against the exploitations of provision. All from the force of labor as well as the traffic in human beings. The violation of these provisions is a offense punishable under law. The state required citizens serve in the time of major is a climates or such as a flood, is a force, fire, foregone aggression, etc. Our constitution also provides as a safety guard for the children. It's a ban the employment of children below to the age of 14 years in any factories. Mine are hazardous is occupations. There is one fact here: traffic in human beings mean a sale and purchase of human being as a good and the commodities for immorals of purpose such as slavery and prostitutions. हमारा जो तीसरा पॉइंट यही बात दर्शाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहते भारत के लोग न केवल अंग्रेजी द्वारा बल्कि महाजनों एवं जमींदारों द्वारा भी कई बार शोषित किए गए थे। इसे बंधुआ मजदूर भी कहा जाता था। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बंधुआ मजदूरों के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानूनी के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य की बड़ी जो है आपदाओं जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों को सेवा का जरूरत होती है। हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपाय का प्रदान करता है। कहते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखाने और खाने और खतरों के कारोबारों में नियुक्त की प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह था कि मानव व्यापार का अर्थ मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए उसे गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या बेचा जाता है। तो देखिए, ये बात मैं कई मायने में देखना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि हमारा देश में जो है ये इस तरह की प्रावधान बनी हुई है। कहते हैं फैक्ट्री में बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धड़ल्ले से जो है फैक्ट्रियों में बच्चे काम कर रहे हैं छोटे छोटे। वेश्यावृत्ति की भी जो है हमारे देश ने पूरा ही गढ़ बना लिया है। आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते ही रहते हो और देखते ही रहते हो। कहते हैं सरकार ने रूल रेगुलेशन इसमें है बनी हुई, लेकिन बच्चों का भी शोषण हो रहा है और वेश्यावृत्ति भी यहाँ पर जो खुलेआम हो रहा है। The next here is a fourth fundamental right there, the right to freedom of religion. The India is a multi-religious state. Besides the Hindu, there is a Muslim, Sikh, Christian and many other religions of our country. There are 8 types of religion present in India. The constitution granted to the every person freedom of conscience and the right of practice and is a prerogative to any religion. It also permit every religion group their right to manage its own affair in the matter their religion. Every religion is a have the right to establish and maintain in a situation for the religious and charitable purpose. Each religious is a group is also free to the purchase and manage its movable and immovable property is accordance with the law from the prerogatives of its religion. Our constitution lay down that no religious education can be imparted in any educational institution, which is a is maintained over to state found. This restriction does not apply to those educational institutions which are not maintained over state found. But even this institution, no child can be completed to receive a religious instruction against her and his and her wishes. And the right to freedom of religious and not absolute, it is can be restricted on the ground of public order, the morality and health. The state shall not be imposed a restriction is about reality. दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत एक बहुत धार्मिक देश माना गया है। हमारे देश में हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोग होते हैं। आप
को पता ही होगा कि हमारे देश में जो है 8 तरह के जो है धर्म पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने को नहीं पता है कौन कौन से धर्म है तो मैंने सोशोलॉजी में भी इसको जो है वीडियो रिलीज किया था, उसको आप देख सकते हो कौन कौन धर्म है और इनके क्या विशेषताएं हैं। कहते हैं संविधान प्रत्येक व्यक्तियों के अंत का कारण की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की सुरक्षा देता है। यानी आप कोई भी धर्म मानते हो, आपको ये अधिकार है कि आप इसकी स्वतंत्रता ये दी जाती है कि आप मान भी सकते हो और इसका प्रचार भी कर सकते हो। लेकिन प्रचार करने के लिए आपको जो है गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है या दूसरे धर्म को किसी तरह का जो है मानहानि नहीं करना है। कहते हैं यह सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म में संबंधित क्रियाकलाप करने का अधिकार भी अनुमति है। यानी आप यज्ञ भी कर सकते हो, आप किसी प्रकार की हर तरह के जो है क्रियाकलाप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मानव बलि के या किसी भी चीज़ की बलि देने के लिए प्रावधान नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी जीव की रक्षा करना हमारा संविधान का सबसे परम कर्तव्य भी माना गया है। तो आप कोई भी क्रिया कर सकते हो, किसी भी कार्य करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात धार्मिक के रिगार्डिंग आता है। प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्मस्थल उद्देश्य के लिए संस्था प्रतिस्थापित तथा प्रबंधन को अधिकार है। किसी भी धार्मिक समूह का कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने तथा सब प्रबंधन करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, कहते हैं हमारे संविधान राज्य कोष की पुण्यता प्रबंधन किसी शैक्षिक संस्थाओं में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि हमारा देखिए कोई भी अगर शैक्षिक संस्था है, कोई भी स्कूल कॉलेज कोई भी है, आप वहाँ पर किसी प्रकार के धर्म की जो है ज्ञान नहीं दे सकती हो। ये हमारी धर्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार कदाचित नहीं करता है। यह प्रतिबंधन उन संस्थाओं पर भी लागू नहीं होता है जो राज्य कोष से पुण्यता प्रबंधित नहीं है। लेकिन ऐसे संस्थाओं में भी किसी बच्चों को धार्मिक उपदेश देने मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी बच्चों को इच्छा है तो प्राप्त कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो वो ये एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं है, इन्हें कानूनी व्यवस्था, नैतिक तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। राज्य मनमाने ढंग से प्रतिबंध लागू नहीं भी कर सकते।